نیوز میں ہوں سید احمد جیلانی۔ شروعات کریں گے کشمیر کی خبروں سے۔ لاک ڈاؤن میں آج پوری وادی کشمیر میں دی گئی جزوی نرمی۔ ویکنڈ لاک ڈاؤن کے بعد سری نگر شہر کے بازاروں میں دکانیں جزوی طور پر کھلی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی 50% سیٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ سڑکوں پر رواں دواں رہا۔ کووڈ کے معاملات میں کمی کے بعد جاری کی گئی نئی ہدایت، جس میں دکانیں کھولنے میں دی گئی ہے نرمی۔ پونچھ میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر بھیور گلی علاقے میں 2 گاڑیاں آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 5 افراد ہوئے زخمی۔ حادثے کی خبر ملتے ہی فوجی جوانوں نے موقع پر ہی زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ بعض کو اسپتال میں کیا گیا داخل۔ ان کے ننگالی صاحب گاؤں میں ترنگلی نالہ میں نہاتے وقت ڈوبنے سے ایک شخص کی ہوئی موت۔ مہلوک کی شناخت 31 سالہ شکیل کے طور پر ہوئی۔ نالے میں گھنٹوں تلاشی کے بعد نکالی جا سکی لاش۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کی لاش۔ واقعے کے بعد لوگوں میں غم اور غصے کا ماحول۔ شوپیاں کے کنجولر گاؤں کے لوگوں کا مطالبہ، گاؤں میں جے کے بینک کا برانچ کھولا جائے۔ ساتھ ہی لوگوں نے ISM ہیلتھ سینٹر کی سہولت بہتر کرنے کا بھی کیا مطالبہ۔ کنجولر پر 20 گاؤں کے لوگوں کا انحصار۔ بینک کے لیے لوگوں کو گھنے باغات سے گزر کر دور جانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات راستے میں رقم چھینے جانے کا بھی ہوتا ہے خدشہ۔ سری نگر میں اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپے۔ سری نگر میں واقع پاسپورٹ آفس پر مارے گئے چھاپے۔ آفس میں موجود افسران سے طلب کی گئی اہم جانکاری۔ کریم آباد پلوامہ میں حفاظتی دستوں کا محاصرہ۔ حفاظتی دستوں نے علاقے میں شروع کیا ہے سرچ آپریشن۔ مزید تفصیلات کا انتظار۔ کونو سری نگر میں موجود DRDO اسپتال پر کام تقریباً مکمل۔ اسپتال 500 بستروں پر ہے مشتمل۔ اسپتال کے مکمل ہونے سے کشمیر کے باقی اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ ہوگا کم۔ جموں کشمیر میں شراب سے متعلق نئی پالیسی کے مطابق شراب کی دکانوں کے لائسنس کے لیے ای ٹینڈرنگ کو لایا گیا عمل میں۔ نئے تاجروں کو شراب بیچنے کے دیے گئے لائسنس۔ نئے مقامات پر شراب کی دکانیں کھولنے کا لائسنس دینے سے لوگ کافی ناراض۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے اس فیصلے کے خلاف کیا احتجاج۔ ان کا مطالبہ کہ ان کے علاقوں میں شراب دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ جموں میں آج پردیش BJP کے کور گروپ کی ہوئی میٹنگ میں پردیش BJP کے کئی سینئر لیڈران ہوئے شریک۔ یہ میٹنگ اس وقت منعقد ہوئی جب جموں کشمیر میں سیاسی حالات کے تناظر میں کئی قیاسرائیاں گشت کر رہی ہیں۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کمندر گپتا نے کہا کہ میٹنگ میں جموں کشمیر کے سیاسی حالات، کورونا کی صورتحال اور امن و قانون کی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جموں کشمیر کے متعلق مرکزی سرکار کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو انہوں نے اس بارے میں کوئی جانکاری ہونے سے انکار کیا۔ نیو زعفران ٹرک یونین پامپور سے وابستہ ڈرائیوروں کا احتجاج۔ سال 2018 کی بقایا رقم کی ادائیگی کی مانگ۔ محکمہ PDD کے حکام سے رقم کی ادائیگی کی مانگ۔ ڈرائیوروں نے کہا کہ ان کے اہل خانہ فاقہ کشی پر ہے مجبور۔ ضلع پلوامہ میں گنجوا گاؤں کو 20 سال بعد پینے کا پانی فراہم۔ گاؤں میں ہر گھر کو پانی دینے کے لیے بچھائی گئی نئی پائپ لائن۔ پینے کا پانی جیسی سہولت کافی عرصے بعد دستیاب ہو جانے پر مقامی آبادی نے مسرت کا کیا اظہار۔ لوگوں نے مرکزی حکومت کے علاوہ DC پلوامہ اور جل شکتی محکمے کے افسران کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیری پنڈتوں کی تنظیم کی ورچوئل لائیو کنسرٹ کا اہتمام۔ بالی ووڈ کے 35 فنکاروں نے لیا حصہ۔ کورونا متاثرین کے لیے اکٹھا کیا گیا فنڈ۔ یہ کنسرٹ فیس بک، YouTube اور IM بدھا لنک پر ملک و بیرون ملک دیکھا گیا۔ IM بدھا فاؤنڈیشن اور انوپم کھیر فاؤنڈیشن نے بھی اس لائیو کنسرٹ کی نظم میں اہم تعاون فراہم کیا۔ بھارت رتن لتا منگیشکر اور آشا بھونسلے نے بھی اس طرح کے پروگرام کی تائید کی۔ بحران کے دور میں مریضوں کو آکسیجن دینے کا دیسی ساختہ مفید آلہ بنانے کا کارنامہ۔ میڈ ان جموں فلو میٹر کی دھوم۔ مارکیٹ میں دستیاب مہنگے آلے کو ٹکر دینے کے قابل کا پروجیکٹ۔ ضرورت مندوں کو مفت دیا جا رہا ہے آلہ۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سڑک حادثات پر سیاسی و سماجی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا۔ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے انتظامیہ پر غیر سنجیدہ ہونے کا الزام۔
जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1440 नए केसों की निशानदेही हुई। कश्मीर खत्ते में 1102 मजीद केस सामने आए, जबकि जम्मू में 338 नए केस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान 3099 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कश्मीर में 2179 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उधर जम्मू में 920 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की दी गई इजाजत। हीरानगर में 272 कनाल अराजी पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रहा है अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम पहुंचकर तामीराती काम का लिया जायजा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दरकार काम जल्द शुरू करने का हुक्म दिया। शराब के हवाले से जम्मू कश्मीर की नई वाइन पॉलिसी के तहत सरकार ने यूटी के कई ऐसे मकामात पर भी शराब की दुकानें खोलने के इक़दाम शुरू किए हैं जहां अभी तक ये दुकानें मौजूद नहीं थी। इस फैसले के बाद लोग सरापा एहतजाज हैं और उनके इलाकों में शराब की दुकानें न खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ई टेंडरिंग को अमल में लाया। नए ताजिरों को शराब बेचने की लाइसेंस दी गई, जबकि कई पुराने शराब कारोबारी इस अमल में शरीक नहीं हो पाए। आइए शराब पॉलिसी पर बात करते हैं। समीर भट्ट हमारे साथ नुमाइंदा जुड़ चुके हैं। समीर, नई पॉलिसी वाइन पॉलिसी को लेकर कुछ नाराजगियां भी है और पुराने जो कारोबारी है वो शामिल नहीं हो पाए, क्या कुछ इस शराब पॉलिसी को लेकर कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि जिस तरह आपने सही कहा, पहले जिनको शराब की दुकानें चल रही थी जिनकी, और उस नई पॉलिसी में उनका नाम नहीं आया, उन्होंने भी उन्होंने भी एहतजाज किया। वो भी पहले बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे थे जी। और उसके बाद अब जो नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो ये है कि जहाँ अब ये जो नई दुकानें खुल रही हैं, जो नए ई टेंडरिंग के जरिए नए लोगों को दिया जा रहा है, ये शराब की दुकानें खोलने का मौका दिया जा रहा है या उनको इजाजत मिली है, वो बिल्कुल भी जो एक नियम है, जो एक रूल्स है, उसके खिलाफ वो जा रहे हैं और जगह जगह पे ये दुकानें खोली जा रही हैं। अगर हम पिछले 8 से 9 दिनों की बात करें तो लगातार हर दिन लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं हर जगह पे। जीवल से लेकर अपना जानीपुर, न्यू प्लाट, सतवारी और बाकी जगहों पे पिछले कई दिनों से लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनके जो मोहल्लों के सामने ये दुकानें खुल रही हैं, वहां पे लोग जो है और बिल्कुल किसी भी तरह का जो एक रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उनके घरों के सामने उनको ये जो है रेजिडेंशियल एरियाज में, इलाकाई इलाकों में जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल साथ में ये शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उनका कहना है कि पहले ही लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे दुकानें पहले से ही मौजूद है जम्मू में। अगर हम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जम्मू में ही ज्यादा दुकानें, और यहाँ पे पहले ही लोग इस चीज से खफा थे, लेकिन अब दोबारा और बड़ी तादाद में उनके घरों के साथ नजदीक में ही जिस तरह से ये दुकानें खुल रही हैं, तो उनका कहना है कि उनके बच्चों पे, उनके नौजवान पीढ़ी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। और खासकर आज के इस कोविड दौर में जो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो उनकी मुसीबतों में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो इसी के चलते बिल्कुल लोग सड़कों पर हैं और उन्होंने इस मामले में जो एक्साइज कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर से लेकर एलजी तक को चिट्ठी लिखी है। लेकिन उनका ये कहना है लोगों का कि अभी तक इस बारे में जो सरकार है उन्होंने कोई भी उनको एश्योरेंस नहीं दी है। तो लोग आज भी एहतजाज कर रहे हैं। और जिलानी उनका ये कहना है जब तक समीर, सरकार का तो ये कहना है कि जो यूटी के कई ऐसे मकामात हैं जहां पर शराब की दुकानें नहीं थी, उन इलाकों में ये दुकानें अब खोलने की इजाजत दी जा रही है, या पहले से जो दुकानें मौजूद हैं इसके अलावा भी दी जा रही है? क्या परेशानी इलाके के लोगों की असल में है क्या? देखिए जिलानी, मैं आपको बताऊं, पहले जो दुकानें खोली जा रही थी वो ज्यादातर हमने देखा कि वो बाजारों में थी, जो मेन बाजार थे उन जगहों पे ये शराब की दुकानें चल रही थी। लेकिन अब जबकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और दुकानें भी सड़कों पे इतनी ज्यादा नहीं है, तो कोई लोग जो है अपने मोहल्ले या अपने जहाँ पे वो रहते हैं उस एरिया के अंदर, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उधर उन्होंने दुकानें बनाई हैं और जो ई टेंडरिंग के जरिए उन लोगों ने
वो एक कामयाबी हासिल की और उन्होंने अपनी लाइसेंस वो ले ली है शराब की, और जी। अब वो वहां से, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा वहां पे जो लोग रहते हैं। और हमने लोगों देखा का खास एतराज ये है करके- कि रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान न हो। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गुजर नगर एरिया है, वहां पे कई लोग जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं वो भी सरापा एहतजाज कर रहे हैं। जी। जहाँ पे उस्ताद मोहल्ला है वहां पे कर रहे हैं, न्यू प्लाट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर कोई जो इंसान है, क्योंकि जो शराब की नोशी है वो हर एक के लिए मुसीबत का सबब बनती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार ठोस कदम उठाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बाबत ये सुनिश्चित करे, इस चीज की एश्योरेंस दे कि कम से कम ये जो दुकानें हैं ये रेजिडेंशियल एरियाज के पास ना हो, बल्कि अगर वो मार्केट में कहीं खोलते हैं तो उनको कोई इसमें ज्यादा ऐतराज नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि ये भी गलत है, शराब की दुकानें अगर कम हो वो अच्छा है, क्योंकि वो याद दिलाते हैं कि बिहार देखिए, बिहार में कितना ज्यादा क्राइम था, और जब शराब बंदी वहां पे की नीतीश गवर्नमेंट ने, तो आज देखिए वहाँ क्राइम बहुत कम हुआ है। और वो कहते हैं कि अगर शराब की दुकानें ज्यादा खोली जाती हैं तो जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, यहाँ का नौजवान है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, यहाँ क्राइम रेट भी बढ़ेगा, और जो लोग हैं वो इसी बिद्दत के पीछे, इसी लानत के पीछे रहेंगे, और जो एक कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, एक अच्छा माशरा बनना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, नाराज हैं, सख्त एहतजाज कर रहे हैं, और जगह जगह पे ये एहतजाज का अमल जो है वो चल रहा है। और जो नई एक्साइज पॉलिसी है, मैंने आपको जिलानी पहले ही कहा कि उस पर पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो उनको नजरअंदाज किया गया है। यहाँ ई टेंडरिंग के जरिए बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने अब ये दुकानें ली हैं, और वो रेजिडेंशियल एरिया में ये दुकानें खोल के जो कुल मिलाकर लोगों का एतराज यही है कि रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान न हो, ताकि उनके नौजवान और बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की नामवर ब्रॉडकास्टर सोरजा साहब नहीं रहीं। कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर रफीक मसूदी ने इजहार ताज़ियत किया। ऑल इंडिया रेडियो की नामवर ब्रॉडकास्टर सोरजा साहब नहीं रहीं। कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। रफीक मसूदी ने ताज़ियत का इजहार किया है। डॉक्टर रफीक मसूदी ने इजहार ताज़ियत किया है। ऑल इंडिया रेडियो की नामवर ब्रॉडकास्टर सोरजा साहब नहीं रहीं। कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। ये खबर हमें अभी मिली है। डॉक्टर रफीक मसूदी ने सोरजा साहब के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कौम से करेंगे खिताब। शाम 5 बजे होगा खिताब। कोरोना और वैक्सीन के हवाले से कर सकते हैं जरूरी ऐलान। पीएमओ ने दी जानकारी। दिलीप कुमार की हालत मुस्तहकम। माहिर इमराज सीना डॉक्टर जलील पारकर ने दी जानकारी। कहा दिलीप कुमार वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि ऑक्सीजन पर हैं। बास टेस्ट के नतायज का इंतजार है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा गुज़श्ता 61 दिनों के दौरान कोरोना मामलों में आई कमी। सेहतियाबी की शरह पहुंची 94%। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन मुहिम का किया ऐलान। 4 हफ्तों में 45 साल की उम्र से ज्यादा के हर शख्स को लगा दी जाएगी वैक्सीन। इस मुहिम के तहत लोगों के घर घर भी जाएंगे हम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 27 पैसे हुआ महंगा। राहुल गांधी ने महंगाई के मामले पर मरकज पर साधा निशाना। कहा पेट्रोल पंप पर बिल देते वक्त आपको महंगाई में नजर आएगी तरक्की। मोदी सरकार के जरिए महंगाई में होने वाला विकास आएगा नजर। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच लफ्ज़ जंग। महुआ मोइत्रा ने गवर्नर पर लगाया इल्ज़ाम। राजभवन में अपने करीबी अफराद को अहम ओहदों पर तकर्री का इल्ज़ाम। गवर्नर ने इल्ज़ाम को किया खारिज। उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ी लगाने की मांग की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। दोनों पर शमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद उकसाने का है इल्ज़ाम। यूएपीए के तहत चल रहा है मुकदमा।
मेहुल चौकसी के अगवा के दावे की जांच करेगी एंटीगुआ और बरमूडा पुलिस। चौकसी ने एंटीगुआ और बरमूडा पुलिस से अगवा को डोमिनिका ले जाने का किया था दावा। मेहुल चौकसी के वकील ने एंटीगुआ को खत लिखकर अगवा मामले की जांच का किया मुतालबा। कर्नाटक के साबिक वज़ीर अक़लियती बहबूद मुमताज़ अली खान का 95 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। आज सुबह बेंगलुरु में अपनी रिहाइशगाह में ली आखिरी सांस। 2008 में येडियुरप्पा की हुकूमत में वज़ारत अक़लियती बहबूद, हज और औक़ाफ़ थे वज़ीर। आंध्र प्रदेश में 20 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसों पर रियासती हुकूमत ने लिया अहम फैसला। आंध्र प्रदेश में सुबह 6 था दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में नरमी। उत्तर प्रदेश में हुआ अनलॉक। 75 अजला में 71 अजला को कोरोना कर्फ्यू से किया आज़ाद। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए खुलेंगी दुकानें और मॉल्स। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में नहीं दी गई राहत। आज से दिल्ली में अनलॉक 2 कोरोना केसों में कमी के बाद लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ हटाया गया। अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। महाराष्ट्र में आज से 18 अजला में लॉकडाउन की पाबंदियों पर दी गई छूट। कोरोना पॉजिटिविटी शरह और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की दस्तयाबी को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई रियायत। सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र में अनलॉक का अमल 5 मरहलों में होगा। मुंबई को अभी रियायत के लिए मजीद करना पड़ेगा इंतजार। मुंबई में मुकम्मल अनलॉक पर फैसला 15 जून के बाद लिया जाएगा। कोरोना और ब्लैक फंगस पर काबू पाने में रियासती और मरकजी हुकूमत नाकाम। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस लीडरों की सत्याग्रह। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का केसीआर हुकूमत से मुतालबा। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। कहा केसीआर हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम। मोहम्मद अली शब्बीर ने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने और आवाम से किए वादों को पूरा करने का किया मुतालबा। अयोध्या धनीपुर में तामीर होने वाली मुजवजा मस्जिद का मामला। प्रोजेक्ट मौलवी अहमदुल्ला शाह शहीद के नाम किया गया मंसूब। फाउंडेशन के रुकन अतहर हुसैन का बयान। कौमी यकजहती के फरोग के पेश नजर लिया गया फैसला। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मामूल के कामकाज की हुई शुरुआत। 16 अदालतों में शुरू हुआ समाअत का सिलसिला। फिलहाल वर्चुअल समाअत ही करने का किया गया है फैसला। आलमी बैंक ने हिंदुस्तान के लिए $500 मिलियन की मंजूर। छोटी और मुतवसत सनतों के इस्तेहकाम के लिए मंजूर। पाकिस्तान के सूबे सिंध में कोकटी के करीब सरसीर एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम में कम से कम 30 अफराद हलाक, जबकि 50 मुसाफिर हो गए हैं जख्मी। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक ये हादसा अलग सुबह पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल में कर दिया गया मुंतकिल, जबकि बोगियों में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाई जारी। मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सरसेर एक्सप्रेस की इंजन समेत 3 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि कुछ बोगियां खाई में जा गई। इसराइल में सियासी रस्साकशी जारी। तल अवीव में अपोजिशन जमातों की मीटिंग। अपोजिशन लीडर यार लेपिड और उनके अहम इत्तेहादी नफ्ताली बेनेट ने की मुलाकात। दोनों लीडरों ने नई हुकूमत तश्कील देने के लिए माहदे के अख्तिताम पर पहुंचने का किया ऐलान। इसराइल के हिज़्ब इख्तिलाफ की 8 जमातें बुध के रोज एक नई हुकूमत तश्कील देने पर हुई थी मुत्तफिक। इनमें मंसूर अब्बास की पार्टी को यूनाइटेड अरब पार्टी भी शामिल। माहदे के तहत नफ्ताली बेनेट और लेपिड बारी बारी बनेंगे इसराइल के वज़ीर आज़म। मशरक़ी यरूशलेम में इसराइली हुक्काम ने फ़लस्तीनी बहन भाई को लिया हिरासत में। बाद में घंटों बाद किया गया रिहा। फ़लस्तीनी समाजी कारकुन मुनाल करद को इतवार की सुबह पूछगछ की गर्ज से लिया गया था हिरासत में। मुनाल करद ने फ़लस्तीनी खानदानों के बेदाखिली के खिलाफ एहतजाज में कलीद रोल किया था अदा। वहीं गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के खिलाफ और बेदखल फ़लस्तीनियों के हक़ में किया गया एहतजाज और अमन एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस ने की फायरिंग, जिसमें 27 फ़लस्तीनी हुए जख्मी। यमन में मारेब सूबा आर्मी हेडक्वार्टर पर हूसी बागियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक 5 साला बच्ची समेत कम से कम 17 शहरी हलाक, जबकि कई हुए हैं जख्मी। यमनी मुसल्लह अफवाज के इंतजामी हेडक्वार्टर के
फ्यूल स्टेशन पर किया गया था हमला। यमन के वज़ीर-ए-आज़म मोइन अब्दुल मलिक सईद अल शैरी ने हमलों की तस्दीक की। कहा, मारिब में गैस स्टेशन पर धमाका हूसी बागों के मिसाइल और ड्रोन हमले का था नतीजा। सऊदी की हिमायत याफ्ता हुकूमत और ईरान की हिमायत याफ्ता हुसियों के बीच कई बरसों से जारी है खाना जंग। अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से खवातीन बच्चों समेत 11 अफराद हलाक। बम के जरिए बस को निशाना बनाने का वाक़या मगरबी सुबह बादगीस में पेश आया। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं की कबूल। ब्राजील के शहर मानवस की सड़कों पर जराइम पेशा गिरोहों का हमला। बसों, कारों और बैंकों पर किए गए हमले। आवाम में दहशत का माहौल। हिफाजती इक़दामात के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जुज़वी तौर पर किया गया बंद। ब्राजील में लॉकडाउन पाबंदियों की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री मुतासर। एक म्यूजिक ग्रुप ने साहिली इलाके रियो डी जेनेरो में बस में मोबाइल कंसर्ट का किया इनेकाद। लोगों ने घरों की बालकनियों से म्यूजिक कंसर्ट का उठाया लुत्फ। पेरू में सदारती इंतखाबात की वोटिंग की गिनती का अमल जारी। 1 फरवरी को मामूली बरतरी हासिल। गुज़श्ता रोज पेरू में हुए थे सदारती इंतखाबात। लगभग 42% वोटिंग हुई थी। मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज की पार्टी लेजिस्लेटिव इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। इब्तिदाई नताज में लोपेज की पार्टी एतमाद हासिल करने में रही नाकाम। एतवार के दिन लोअर हाउस को मुंतखब करने के लिए वोटिंग की गई थी। जर्मनी की मशरक़ी रियासत सैक्सनी एनहाल्ट में हुए इंतखाबात में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की जीत। अवाम ने राइनर हाज़ेलूफ को तीसरी मुद्दत के लिए किया मुंतखब। सितंबर में हुए इंतखाबात से कबल CDU की जीत अहमियत की हामिल। उर्दन में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम की हिमायत बड़ी महंगी। उर्दन पार्लियामेंट में MP उसामा अल अजारमी की बर्खास्तगी पर वोटिंग। अल अजारमी के हामियों और फोर्सेस के बीच हुआ तसादुम, जिसमें 4 एहलकार हुए थे जख्मी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 17,31,97,044 अफराद हो चुके हैं मुतासर। वायरस ने 37,26,107 अफराद के लिए है जान। सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में, जबकि अमवात के मामले में ब्राजील दूसरे मकाम पर। चीन में गुज़श्ता रोज कोरोना से कोई अमवात नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में चीन के मेनलैंड में कोरोना के 5 नए केस की निशानदही, जबकि 5,848 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। अब भी 303 मरीजों का इलाज जारी। शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल के यहाँ बेटी के पैदाइश। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में हुई पैदाइश। बच्ची का नाम मलिका बरतानी और दादी शहजादी डायना पर रखा गया है। माँ और बच्ची दोनों सेहतियाब। शिमाली अमेरिका के मशहूर चिड़ियाघर में रहने वाले सबसे बूढ़े चिंपैंजी का इंतकाल। सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में हफ्ते के रोज चिंपैंजी का हुआ इंतकाल। चिड़ियाघर इंतजामिया ने चिंपैंजी की उम्र 63 बरस बताई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका कोरोना के फैलाव का असल मकाम चाइना जानना चाहता है, कहा, ताकि अगली वबा को रोकने के इक़दाम किए जा सके। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि चीन को खुद का एहतसाब करना चाहिए। जवान के मरीवा में सोने के ताजिर का दिन दहाड़े कत्ल। घर में घुसकर बदमाशों ने छुरा घोंप कर ताजिर का किया कत्ल। ताजिर तबके ने इंतजामिया से सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। बेतिया में सवत क्रांति एक्सप्रेस से जद में आने से 3 की मौत, 2 लड़के और एक खातून की लाश की शिनाख्त मसरूफ है पुलिस। भागलपुर के एक रिहायश मकान में मिनीगन फैक्ट्री का हुआ इंकशाफ। पटना STF की कार्रवाई में 3 गिरफ्तार। भारी मकदार में नीम साख्ता असलहा जब्त। राज्यसभा चुनाव
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में बढ़ सकती है रघुवर दास की मुश्किलें। पीसी एक्ट लगाने पर रांची सिविल कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। टीकाकारी में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस के बाद टीका सेंटर्स का कयाम। पटना में कल से 2 सेंटरों पर 2400 घंटे लगेगा टीका।